Hello students, today we are going to study the chapter of sound for class 7 physics. In this video, I will be covering sound, its production and propagation. The second part of theme sound, which is reflection and characteristics of sound, will be taken up in the another part 2. Fine. So in this I will be taking what is sound, what are the different sources of sound, what is tuning fork, sound needs a medium to transmit, this point will be explained, and along with that we will see why the thunder is heard after the flash of light, and we will include the different exercise of this chapter also. So without any delay, let's start. So right from the getting up in the morning, you open up your eyes, what do you hear? First you hear the sound of alarm clock right in the morning. You will listen the chirping of birds, you will listen people talking around you, you will listen barking of dogs and many sounds of vehicles, sound of aeroplane. So lots many sounds you will hear right in the morning. Fine. So what are these sounds? Before going for what is sound, let's understand what is a wave, because we always say sound wave is coming or we have heard the sound wave. So what is wave? That we will study first. Fine. So what is wave? So wave is any disturbance in the environment that leads to propagation of energy from one point to another point. Consider an example. If there is a pond, this is a pond, when you throw a stone into it, fine. So when you are throwing a stone, मान लिया ये आपने इसमें stone throw कर दिया, so what will happen? You will see some waves which are moving from the point where stone has fallen and going away in this direction. So what has happened? The energy is being transferred from this point to other point because of this. So wave is basically a disturbance in the environment that is being created for transferring energy from one point to another point. वो होता है आपका wave. Fine. अब वेव जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द सेकंड वन इज ट्रांसवर्सल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि मान लिया वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. फाइन. जो ऑसिलेशंस होंगे, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, मान लिया एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो हाउ दे आर मूविंग? दे विल ऑसिलेट लाइक दिस and now they have reached this, again they will move in this direction. So oscillations and the actual propagation, इसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, ऐसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. एज यू कैन सी हेयर ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल. सो दे आर, दिस इज पार्टिकल 1. तो पार्टिकल 1 कैसे मूव हुआ? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर अगेन पार्टिकल 2 भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है. और एनर्जी जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो वेव मूव हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है. दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो व्हेन द पार्टिकल्स of a medium oscillate in the same direction in which the wave is being propagated. जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में वो जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोपेगेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. लेकिन अगर दूसरी है हमारी ट्रांसवर्सल में क्या होता है? जो आपके पार्टिकल्स हैं वो वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ वेव, बट द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो. उसके दोनों साइड में ऐसे जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग. सो दैट इज योर ट्रांसवर्सल वेव. जो हमारी साउंड वेव है, साउंड वेव वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं जिस डायरेक्शन में जो साउंड वेव है वो मूव हो रही है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द or the traveling of sound from one point to another point. So we have learned what are sound waves, or sound waves are longitudinal waves. Sound waves produced in the air are the examples of longitudinal wave. यानी कि sound wave में भी the direction of propagation and the oscillation of the particles remains
इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकेंड पार्टिकल, तो इसी डायरेक्शन में वेव मूव हो रही है और इसी डायरेक्शन में ही जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोपिगेट हो रहे हैं. सो नाउ देयर इज वन एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन टू अस. व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? हमने एक टेबल ली, टेबल के ऊपर हमने रखा एक स्केल, प्लास्टिक रूलर, देन उसके एक साइड को हमने एक ब्रिक से फिक्स कर दिया ताकि वो मूव ना हो. अब यहाँ पे हमने वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया, स्केल को पकड़ा, इस डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच किया और फिर छोड़ दिया. सो व्हाट विल हैपन? दीज काइंड ऑफ वेव्स विल हैपन. फाइन. सो जब ये वेव होंगी देन यू विल हियर द साउंड. So this proves that the sound is because of the vibration. So when there is any sound, so that means there are vibration in that particular area. So vibration के कारण ही वो sound होती है. उसके बाद अगर हम अपनी लैब की बात करते हैं, लैब में साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क ये ऐसा होता है, ट्यूनिंग फॉर्क में हमारे पास एक यू शेप का होता है मेटेलिक पार्ट. स्टील, इट इज़ बीइंग मेड ऑफ स्टील, ये स्टील का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील. हैंडल होता है इसका, और ये जो यू पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोंग, और जो इसका ये लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम. सो नाउ स्ट्राइक वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द हार्ड रबर पैड. हार्ड रबर पैड पे हमने उसको स्ट्राइक किया. व्हेन यू ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू इट, अपना कान के पास लेके आए जब उसको, यू विल हियर अ sound, humming sound. That means when there are vibrations, sound will be there. जब हम एक foam ball के पास इसको लेके आते हैं, the foam ball moves away from it, which means the vibrations are being produced in it. वो prove है कि इसके अंदर vibrations हैं. तो हम laboratory में tuning fork को use करते हैं in order to produce the vibrations. We hit it with the रबड़ पैड. एक रबड़ पैड हाथ में लेके उसके ऊपर हम इसको हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं. इन लैबोरेटरी वी यूज ट्यूनिंग फॉर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. नाउ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है? द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ynx और वॉइस बॉक्स. हमारे गले में जो है वो वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है. द टू वोकल कॉर्ड्स are ligaments which are stretched across the voice box. voice box में क्या होता है हमारे पास? voice box में जो टू vocal cords हैं उनके ligaments जो है वो stretch होते हैं. जैसे आप गिटार या सितार में वायर्स होती हैं, उन वायर्स को स्ट्रेच करते हो तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. ऐसे ही हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसमें लिगामेंट्स होते हैं, वो लिगामेंट्स जब स्ट्रेच होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड. उसके बीच में एयर होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड हमारे वोकल कॉर्ड में. ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक यू हैव विंड इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव रीड इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स. विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, शहनाई, योर माउथ ऑर्गन, ऑल क्लैरिनेट, ठीक है, हारमोनियम इज ऑल्सो देयर. रीड इंस्ट्रूमेंट सब में कहीं ना कहीं एयर और वाइब्रेशंस का ही काम होता है. लाइक इन गिटार, वायलिन, वहाँ पर स्ट्रिंग होती है, धागा होता है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस. सिमिलरली इन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, तबला, जिनके ऊपर हाथ से हम बजाते हैं और आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है. फाइन. व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू द मॉलिक्यूल ऑफ एयर. सो कोई भी जो बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या करती है? वो एनर्जी को एयर में ट्रांसफ़र करती है. जो एयर के पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ एयर, दे वाइब्रेट, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और वाइब्रेट करते हुए वो हमारे ईयर ड्रम के पास आते हैं. जब वाइब्रेट करते हुए हमारे कान में जो है, दिस इज आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, देन द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और वो ब्रेन जो है तब वो साउंड को रिकॉग्नाइज करता है कि ये डॉग की साउंड है या बर्ड की साउंड है या अंकल की साउंड है, आंटी की साउंड है, किसकी साउंड है. फाइन. सो ईयर ड्रम क्या करेगा? ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होगी, वहां से सिग्नल जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन जो है वो साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा विच काइंड ऑफ साउंड इट इज. अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, जो साउंड है वो
एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती है, वो लिक्विड्स में भी ट्रैवल कर सकती है। फाइन। सो सबसे ज़्यादा किस में वो ट्रैवल करती है, सो कितना फास्टर है या कितना स्लो है, दैट वी विल सी इन डिफरेंट मीडियम्स। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं सॉलिड्स को। फॉर दैट वी हैव एन एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, एक अलार्म क्लॉक रखी और अलार्म क्लॉक जब वो प्ले हुई, वो बजी जब, तो हमने अपने कान को क्या किया, टेबल के ऊपर रख दिया। सो इतनी ज़ोर से साउंड हमें सुनाई दी when we were standing and hearing the sound of the clock, that was even less, but when we put our ear on the table, the sound of the alarm clocks becomes very high. So this proves that it is clear from this experiment that the sound travels better and faster in solid as compared to the गैस और एयर। गैस और एयर की बजाय जो साउंड है वो सॉलिड्स में ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। फाइन। सिमिलरली अगर हम लिक्विड्स को कंसीडर करते हैं, हमने क्या किया, एक वो क्वैक क्वैक वाला जो टॉय होता है उसको हमने स्क्वीज किया और स्क्वीज करने के बाद उसको प्लास्टिक की एक बकेट थी, उसमें पानी रखा था, हमने उसमें डाल दिया और उसको वहाँ पे जाके हमने उसको छोड़ा। यू विल हियर अ फेंट साउंड। आप खड़े होके सुन रहे हो तो यू विल हियर अ फेंट साउंड। अब क्या करोगे, सेकेंड थिंग, आप अपने कान को उस बकेट पे लगाओगे। जब आप बकेट पे लगाने के बाद देन अगेन स्क्वीज द टॉय डॉल, देन यू विल हियर अ क्लियर एंड लाउडर स्क्वीक्स ऑफ डोल। जो वो साउंड थी, जब आप अपने ईयर को नियर द बकेट लेके आओगे, उनको वहाँ लगाओगे, तो जो साउंड आएगी वो एकदम क्लियर आएगी। दैट मीन्स साउंड है वो लिक्विड्स में ज़्यादा जल्दी और फास्टर ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू गैसेस। यानी कि गैसेस में, एयर में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे स्लो होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड्स में और उससे कम होती है गैसेस में। एज दिस इज द टेबल विच इज़ गिवन टू यू इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों का आपको दिखाया गया है। फाइन। सो यू कैन सी सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम में द स्पीड इज 6420, ब्रास में 4700, सो इट इज मच हायर। लिक्विड्स में लाइक वाटर में कितनी होती है, 1498, सो अराउंड 1500 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो इट इज गिवन लाइक 1500 मीटर पर सेकेंड जो साउंड है वो वाटर में है। फाइन। ऐसे ही आप गैसेस में चेक करो तो एयर में कितनी है, 346। देखो कहाँ 346, कहाँ 1500 और कहाँ ये है अराउंड 6500 के करीब। फाइन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस speed of sound in different materials. It is much lesser in gases as compared to the liquids and as compared to the solids. So sound travels much faster in the solids. तभी हम जब रेलवे ट्रैक पे आप खड़े हो, कभी रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हो, जब खड़े हो के आप साउंड को सुनते हो तो आपको नहीं पता चलता है कि वेयर इज द ट्रेन। लेकिन जब अपने ईयर को आप ट्रैक पर लगाते हो, सो यू विल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ ट्रेन कमिंग और गोइंग वेरी क्लियरली व्हेन यू पुट योर ईयर ऑन द रेलवे ट्रैक। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयरन, और आयरन में स्पीड ऑफ साउंड है अराउंड 6000 मीटर पर सेकेंड, और जब आप खड़े होते हो तो वो एयर मीडियम है, वहाँ पे है 346। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड कम है तो साउंड देर से पहुंचेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप अपना रेलवे ट्रैक पर कान को फिक्स करते हो तब वो साउंड जो है उसकी स्पीड हो जाती है अराउंड 6000, तो वो आपके पास जल्दी पहुंच जाती है। सो दैट्स व्हाई यू कैन रिकॉग्नाइज और हियर द साउंड ऑफ ट्रेन वेरी क्लियरली व्हेन यू पुट योर ईयर ऑन द railway track. Fine. So next is bell jar experiment. This is also an important experiment which shows that there is a medium required for the traveling of sound. Sound को travel करने के लिए एक medium की जरूरत होती है. Fine. So हमने इसमें क्या लिया? एक तो लिया ये एक है जार, इसको हम बोलते हैं बेल जार. इस बेल जार क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक बेल लगी हुई है, ट्रिन वाली बेल. ठीक है, वो बेल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, और हमने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया है. तो जब हमने की को ऑन किया तो हमें ऑब्वियसली
वो कंप्लीट हो जाएगा और बेल की आवाज़ सुनेगी। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से जो भी एयर है उसको बाहर निकालना शुरू किया, ठीक है। जैसे जैसे एयर उसमें कम होती गई, द साउंड ऑफ बेल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कम होती गई वो साउंड। और एक टाइम ऐसा आया जब हमने पूरी की पूरी जो भी इसमें एयर पार्टिकल थे वो बाहर निकाल दिए। तो क्या हुआ, बेल तो बज रही है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही है। हमारे कान खराब हो गए हैं। कान खराब हो गए हैं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मीडियम ही नहीं है तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगी। पहले तो एयर थी अंदर और अब तो मीडियम नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगी जब पूरी की पूरी एयर हमने बाहर निकाल दी। तो दैट मीन्स इससे प्रूव होता है बेल-जार एक्सपेरिमेंट से कि अगर हमें साउंड को ट्रैवल करना है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो पैदल नहीं चल सकती, उसको घोड़ा चाहिए ही चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो वो घोड़ा कौन है यहाँ पे, एयर या फिर कोई भी सॉलिड और लिक्विड, फाइन। सो दैट्स व्हाई this proves that there must be a medium for the traveling of sound from one place to another place. That was your Bell-jar experiment. से proof हुआ that sound cannot travel through vacuum. Material is very necessary for the traveling of the sound. Sound को travel करने के लिए medium चाहिए ही चाहिए, उसके बिना उसका गुजारा नहीं है। ओके, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरा है हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया, दो बिल्डिंग्स ली, ये दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और इनके बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मे बी मोर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं, ठीक है। 1 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। हमने क्या किया, एक मैन को यहाँ एक के टॉप पे खड़ा किया, दूसरे मैन को दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा किया और एक टाइम फिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पे 11 PM लिखा हुआ है तो 11 PM का टाइम फिक्स कर दिया। 11 PM पर जो ये फर्स्ट पर्सन है, ही विल शॉट द गन, फाइन। सो व्हेन ही विल शॉट द गन, आफ्टर सम टाइम ही विल हियर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही विल हियर द साउंड। सो 11 o'clock पर उसको पता है, इसको पता है कि 11 o'clock पर गन फायर होगा। सो ही विल at dot 11 sharp 11 o'clock he will set his alarm, वो अलार्म को सेट कर देगा 11 o'clock पर, और जब उसको साउंड सुनाई देगी तब वो अलार्म क्लॉक को ऑफ कर देगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट। दोनों को पता है कि 11 o'clock गन फायर होगी, तो इसने 11 o'clock अपनी अलार्म सेट कर दी और 11 o'clock के बाद जब उसको गन की आवाज़ आई तब वो उसको ऑफ कर देगा, तो उसको टाइम मिल गया, ठीक है। So what is the speed of light? Distance between two buildings and time interval. Time interval भी है उसके पास अब और distance between buildings भी है, so he can easily calculate the value. Fine. Okay, this is another very important question. Why the thunder is heard after the flash of light? अब देखो दो चीज़ हैं, जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी हमारे पास आएगी। लाइट है, उसकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड क्या है इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। सो किसकी स्पीड ज़्यादा है, एक ही जगह से, ये मान लिया एक ये जगह है, यहीं से ही लाइट प्रोड्यूस हुई है, यहीं से ही साउंड प्रोड्यूस हुई है। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जो साउंड है उसकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। और मैं यहाँ पर हूँ, ओह इतना गंदा, चलो कोई बात नहीं, फाइन। सो मैं यहाँ पर हूँ, फाइन। सो मेरे पास पहले कौन पहुँचेगा, स्पीड के लाइट, ऑब्वियसली लाइट पहुँचेगी क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई वी सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हियर द साउंड, बिकॉज एक ही प्लेस पर वो एक बादलों में प्रोड्यूस हुई है, उस बादल से लाइट पहले हमारे पास पहुँच जाती है, लाइट का सिग्नल, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और साउंड थोड़ी देर बाद आती है क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम है। This is the exercise of this chapter. Please go through them and you can mark it in your book also if you have the same book. Otherwise you can go through them. It will give you a lot of knowledge about the chapter.
If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button to get the latest updates. Thank you. Thanks for watching. Please do like the video also. Thank you.